Today we shall discuss on a very important issue related to research, and you can also say the educational research. Though these concepts are very small, but it has its major impact on the research, especially the educational research. So we shall discuss about the concept that is standard error, confidence interval, and the degree of freedom. All these three concepts are distinct in nature, but they are interrelated as well. And in the process of discussing these three aspects and their interrelationship, we shall discuss standard deviation first, confidence interval, and followed by the degree of freedom. So, though the lecture will be in continuity, but it will be divided into three parts. So, there will be three distinct lectures on a standard error, confidence interval, and degree of freedom. As we usually do, firstly we shall outline the lecture. So, though in the topic standard error and confidence interval, the concept degree of freedom is not written, but we are talking in terms of all these three concepts: standard error, confidence interval, and degree of freedom. So, we shall try to know what is the meaning of a standard error. And a standard error means a standard error of different statistical measures. So we shall discuss about the standard error of mean, standard error of standard deviation, standard deviation of correlation, and so on. So every statistical measure, whether it is mean, median, mode, standard deviation, correlation, have their standard error. So the topic is a standard error of different statistical measure, and in the process we shall try to know what is a standard error as a concept. This is also a standard error as a concept. A standard error as a concept. A standard error as a concept, and the relationship between a standard error of mean and standard deviation. मतलब स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच के रिलेशनशिप पे भी हम लोग बात करेंगे. स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर पे बात करेंगे. ये मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, ये दोनों कैसे डिफरेंट है एंड कैसे रिलेटेड है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे. सो वी शैल बी टॉकिंग ऑन द डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड एरर. कॉन्फिडेंस इंटरवल, usually we research we use only two confidence interval, 95% and 99%, 0.05 level and 0.01 level. The confidence interval is related to the confidence with which we can claim that the given score is within the limit or not. So it is confidence interval as well as confidence limit, which will come later in the slide. You will see confidence limit and standard error of mean. Confidence limits and standard error of mean. And the last part of the lecture, that is degree of freedom. So we have outlined the lecture and have shown that we are going to discuss a standard error of different measures, confidence interval, and degree of freedom. So we shall start the lecture now from the concept that is a standard error. So let us start the lecture. So the concept of a standard error is associated with the population and sample. It means the standard error of mean is related to sampling. Let us understand. The concept of sample starts where we
टेक ए पॉपुलेशन and sample. Suppose there are primary school students and the target group is primary school students. So all the primary school students, suppose we have delimited our problem with respect to Bihar. So all the primary school students of Bihar is the population, but we cannot use, rather administer any tool on all the primary school students. So we take sample. Sampling is a very important technique. We are not going to discuss in detail about this sampling. So there is a concept of population और उसमें से representative sample का concept है, sample निकालना है. The concept of standard error is very much related to population and sample. If we are not talking in terms of population and sample, it means there is no need of standard error of any statistical measures. So one thing is very important, whenever we are talking in terms of population and sample, we have to talk about the standard error of different statistical measures. We know the measure of population is parameter. The measure of population is parameter. And whereas the measure of sample is statistics. मतलब कि सैंपल में जब हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, लेकिन यहां स्टैटिस्टिकल मेजर का इस्तेमाल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में यदि हम करें तो उस स्टैटिस्टिक्स को हम पैरामीटर करते हैं. सो फॉर पॉपुलेशन द मेजर, मतलब पॉपुलेशन को जिस चीज की मदद से हम मेजर करते हैं उसको पैरामीटर, और सैंपल को जिस चीज की मदद से हम मेजर करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स. और इसीलिए चूंकि पॉपुलेशन पे कोई स्टडी नहीं होती, सब सैंपल पे स्टडी होती है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट जो है वो वेरी मच रिलेटेड टू सैंपल. एक चीज इसकी जरूरत बाद में आएगी. द स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजुअली द मीन. मतलब ये क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड एरर is a type of standard deviation and it occurs when the sampling distribution is there. So how sample is distributed is the standard error that is similar to a standard deviation. So the standard error is a standard deviation of the sampling distribution of a statistics. और यहाँ एक कंसेप्ट लिखा है कि यूजुअली द मीन, मतलब जितने भी स्टैटिस्टिकल मेजर के स्टैंडर्ड एरर हो सकते हैं उसमें सबसे अधिक किसी का इस्तेमाल होता है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का ही इस्तेमाल होता है. क्यों? ग्रेजुअली इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मोड का इस्तेमाल तो सैंपलिंग के बाद हम लोग कैलकुलेशन में करते नहीं हैं. कुछ हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं मीडियन से जिसका इस्तेमाल होता है, कोरिलेशन वगैरह का इस्तेमाल यद्यपि है, लेकिन कोरिलेशन में भी मीन की जरूरत पड़ती है. तो मीन एक ऐसा मेजर है, स्टैंडर्ड एरर की जरूरत सबसे ज्यादा उसी को होती है. इसलिए जब कभी हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो प्रकारांतर से यह भी लगता है कि हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की ही बात कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यूजुअली द मीन इज मेंशन्ड हियर. द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स, अभी हमने कहा कि हर स्टैटिस्टिक्स के
स्टैंडर्ड एरर होंगे। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स is the appropriate standard deviation of a statistical sample population. So we have understood that a standard error is also a type of a standard deviation. How? We will understand later. The standard error is a statistical term that measures the accuracy with which a sample distribution represents a population by using a standard deviation. मतलब यहां भी देखिए ये पॉपुलेशन और सैंपल का। अब मान लीजिए, इसको समझने के लिए जरा ध्यान, यही असली चीज यही है, इसको समझ लीजिए कि इस पॉपुलेशन से बहुत सारे सैंपल निकल सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 2 3 4 और n सैंपल हमने निकाला इस पॉपुलेशन से। अच्छा, पॉपुलेशन का यदि हम मीन कैलकुलेट करेंगे, हम मीन के ही टर्म में ज्यादा डिस्कस करेंगे, हमने अभी कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही है। तो इस पैरामीटर का एक मीन हमने निकाला, कुछ होगा ये, और ये जो है m1 इस सैंपल का, m2 दूसरे का, mn लास्ट का। मतलब जितने भी सैंपल हमने लिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, इन सारे का हमने मीन निकाला। अच्छा, ये मीन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन पे, मतलब कि पॉपुलेशन मीन से इन सारे मीन की जो दूरी है वो कितनी है, मतलब कितना रिप्रेजेंटेटिव है सारे सैंपल का मीन जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी है, आगे हम लोग डिस्टेंस के टर्म में भी डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को खास के। तो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन से ही स्टैंडर्ड एरर का रिलेशनशिप है। मतलब आइडियल कंडीशन ये है कि जो मीन पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए वही सैंपल का होना चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो माना जाएगा कि ये सैंपल पॉपुलेशन का 100% रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन में डिफरेंस होगा। अब ये डिफरेंस कितना है, इसी चीज को मेजर करने का काम स्टैंडर्ड एरर करता है। और ये भी एक तरह से देखा जाता है कि स्टैंडर्ड एरर क्या इतना ज्यादा है कि रिजल्ट वैलिड नहीं है। अब ये मान लो कि हम रिप्रेजेंटेटिवनेस की भी बात करेंगे तो कहेंगे कि ये सैंपल 1 2 3 4, तो उसका जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है। लेकिन कुछ सैंपल ऐसे हैं जिनके मीन पॉपुलेशन मीन से काफी दूर है, मतलब वह सैंपल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एरर। मतलब स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, खास के मीन के टर्म में हमने कहा कि पॉपुलेशन का जो मीन है, क्या सैंपल का मीन उस मीन के आसपास है, उस मीन को रिप्रेजेंट करता है। यदि रिप्रेजेंट करता है तो स्टैंडर्ड एरर कम है, क्योंकि हमने बताया कि एब्सोल्यूट तो होगा नहीं। और यदि रिप्रेजेंट नहीं करता है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, मतलब कि स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, और तब वो सैंपल उस पे जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो रिजल्ट हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इस पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का मान ज्यादा है। यहां हमने डिफाइन किया द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल टर्म। क्योंकि जब भी वेरिएबिलिटी की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड एरर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी। कितना वेरिएशन है, मतलब पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन के बीच कितना वेरिएशन है। सो द स्टैंडर्ड एरर is a statistical term that measures the accuracy with which a sample distribution represents a population
बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके ही स्टैंडर्ड एरर को निकालते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस दोनों के पॉपुलेशन और सैंपल के मीन के बीच में जो गैप है वो कितना है। इन स्टैटिस्टिक्स ए सैंपल मीन deviates from the actual mean। एक्चुअल मीन मतलब द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। इन ए सैंपल मीन deviates from the actual mean of a population। This deviation is the standard error of the mean। मतलब हमने कहा कि हम लोग ज्यादा बात स्टैंडर्ड एरर की स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के टर्म में करेंगे, यद्यपि दूसरे भी मेजर्स के स्टैंडर्ड एरर होंगे। और ये बताया कि ये जो इनके मीन और इनके मीन के बीच का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। बात समझ में आ रही होगी। ए सैंपल मीन इज कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। मतलब ये ए सैंपल मीन इज कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। एस्टिमेशन का कंसेप्ट ही है कि इसको हम एस्टिमेट करें, इसके नजदीक आया कि नहीं आया। दिस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसको रिप्रेजेंट्स ए मेजर बाय विच द मीन ऑफ द सैंपल डेविएट्स फ्रॉम द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब एक चीज याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब ये है कि इसके मीन और इसके मीन, मतलब पॉपुलेशन के मीन और सैंपल मीन के बीच कितना डेविएशन, राइट। सो दिस इज द मेन एस्पेक्ट, दिस इज द रियल एस्पेक्ट, दिस इज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ द कंसेप्ट। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब है कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन के मीन का जो डेविएशन है, जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो कितना है, इसी को मेजर करता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इंप्लाइज दैट मीन इज ए कैलकुलेटेड वैल्यू। एसडी ऑफ ए सैंपल इंप्लाइज दैट द मीन इज एन एस्टीमेट। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इंप्लाइज दैट मीन इज ए कैलकुलेटेड वैल्यू। The second line is more important, that is a standard deviation of a sample implies that the mean is an estimate। मतलब इसका मीन निकाल के हम लोग इसके मीन को एस्टिमेट कर रहे हैं। क्योंकि बड़े ग्रुप को ले नहीं सकते हैं तो छोटा ग्रुप लेके बड़े ग्रुप को एस्टिमेट करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। इन स्टैटिस्टिक्स एरर इज नॉट ए मिस्टेक। हाँ, ये स्टैंडर्ड एरर का जो कंसेप्ट है, ये मत समझे कि एरर हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एरर हैज टू बी देयर। यदि आप प्रोवर्ब की बात करें, मुहावरे की बात करें, तो ये भी है कि ह्यूमन इज टू एरर। ह्यूमन जहां है वहां कुछ ना कुछ एरर होगा। सो इन स्टैटिस्टिक्स एरर इज नॉट ए मिस्टेक, रादर इट इज ए वेरिएशन और डिपार्चर फ्रॉम ए स्टैटिस्टिक्स से मीन। चूंकि मीन से ही ज्यादा हम लोग करते हैं, मतलब कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, लेकिन ये गलती नहीं है। हाँ, जब ज्यादा होगा तो रिजल्ट हमारा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट नहीं होगा। द स्टैंडर्ड एरर इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसमें देखा कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले ग्रुप में ये आता है। सो स्टैंडर्ड एरर इज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। द स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर, मतलब स्टैंडर्ड एरर का मान यदि कम हो, स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर, द मोर रिप्रेजेंटेटिव द सैंपल विल बी ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। मतलब स्टैंडर्ड एरर का मान जितना कम होगा सैंपल विशेष के लिए, वो सैंपल उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। स्टैंडर्ड एरर मेजर्स द स्टैंडर्ड डिस्टेंस। हमने कहा था
कि डिस्टेंस के टर्म में भी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, द स्टैंडर्ड एरर मेजर्स द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन ए सैंपल स्टैटिस्टिक्स, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स से मीन एंड द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स अगेन द मीन। मतलब स्टैंडर्ड एरर मेजर्स द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। मतलब सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। इट मे बी बिटवीन सैंपल, मीडियन के सैंपल के लिए भी हो सकता है, मोड के लिए भी हो सकता है, एंड द पॉपुलेशन, मीडियन और मोड का पॉपुलेशन। मतलब इट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू मीन ओनली, इट इज ऑल्सो ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेजर्स। Whenever we have to work in terms of sample, the standard error is the appropriate measures of variability. अभी हमने बात भी की थी, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वेरिएबिलिटी को मेजर करता है, कितना वेरी करता है। स्टैंडर्ड एरर ऑलवेज मेजर्स द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, डिस्टेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। मतलब इफ वी आर मेजरिंग द स्टैंडर्ड एरर that will be measured from this distance। मतलब यदि हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की बात करें तो the distance between the population mean and the sample mean is nothing but it is a standard error। So a standard error always measures the standard distance from the population mean, that is distance between sample mean and the population mean। So we can also understand the concept of standard error in terms of the distance, that is the distance between the population mean and the distance between the sample mean is nothing but it is the standard error of mean। It may also be true with respect to standard error of standard deviation। So the distance between the standard error of population and the standard error of standard deviation, sample standard deviation is standard error of standard deviation। मतलब कि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एरर और सैंपल के स्टैंडर्ड एरर के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। एंड it is also true with respect to other measures। Now we shall talk about the relationship between standard error of mean and SD। जैसे standard error of mean को यदि हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है standard error of mean, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में हम लोग लिखते रहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड रूट अंडर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम दोनों के बीच में स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच के रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल ले लें, सपोज देयर इज ओनली वन स्कोर। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें स्कोर की संख्या कितना है, मतलब 1 है, मतलब n कितना है 1। तो ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लेफ्ट साइड में है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n राइट में। यदि हम इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिख दें और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहां हम ये वैल्यू डाल दें n का 1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इज 1, सो द वैल्यू ऑफ राइट साइड इज इक्वल टू, सो इफ देयर इज only one n, then there is no difference between the standard error of mean and standard deviation। ग्रेजुअली जब n का मान बढ़ेगा तब स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का मान होगा। तो स्टैंडर्ड एरर इज ए टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, then standard error of mean is equal to a standard deviation, so there is no difference। now स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स पे हम लोग बात करेंगे। वैसे हमने बताया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड एरर है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिसका होता है वो मीन ही है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये रूट
सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन। यदि हम दूसरे स्टैंडर्ड एरर की बात करें, कुछ चीजों को हम लिखेंगे और बाकी चीज इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। यू कैन फाइंड इट, दो इट इज ऑलरेडी इन स्लाइड। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन इज अबाउट 25% लार्जर देन दैट ऑफ द मीन। मतलब मीडियन का जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो स्टैटिस्टिशियन ने कैलकुलेट करके पाया है कि 25% ज्यादा होता है मीन के स्टैंडर्ड एरर से। इसका मतलब है कि मीडियन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। Thus, median is less effective and more subjective to sampling fluctuation than that of the mean. तो एक तो ये हो गया, मोड का उससे भी ज्यादा है। I shall not discuss on this aspect in detail because it is not so much important from your point of view. Standard error of median is equal to, median का जो standard error है वो 1.253 सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन, ये मीडियन का है। मीडियन यहां लिख दे रहे हैं। उसी तरह से यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड एरर ले, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड एरर ले, तो वो उसका फॉर्मूला जो है वो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम यहाँ आर लिख दे रहे हैं, आप याद थोड़ा ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन। और ये माना जाता है कि ये जो मेजर्स हैं आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज approximately 0.71 सिग्मा डिवाइडेड बाय ये इसका डिवाइडेड बाय रूट एन। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला भी देखा और इसका वैल्यू भी हमने आपको बता दिया। और दूसरा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन हमने आपको निकालने का दे दिया। एक और जो बाद में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे दूसरे डेलिब्रेशन में, ये हम आपको लिख दें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, ये आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। ये होगा रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर, मतलब मीन का डिफरेंस है अब n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, मतलब दो ग्रुप के बीच के मीन का डिफरेंस मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इनटू। ये टी वगैरह के कैलकुलेशन में दोनों मीन के बीच के डिफरेंस को इससे हम डिवाइड करके तब निकालते हैं। इसका एग्जांपल हम बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम में फिर एक्सप्लेन करेंगे। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो हमेशा मीन के स्टैंडर्ड एरर से कम होगा। So we have discussed by this time about different statistical measures, जिसमें कुछ का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बताया कि मीडियन का 25% मीन से अधिक होता है। स्टैंडर्ड एरर जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा वो मीन से हमेशा कम होगा। फिर कोरिलेशन का स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे, आदि आदि बातें। और हमने ये बताया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अब हम लोग मीन और प्लस माइनस, आपको याद होगा जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे तो हमने एनपीसी का फिगर बनाया था, आगे भी हम बनाएंगे। तो देखा था कि डिस्टेंस को मेजर करने के क्रम में
ये डिस्टेंस को मेजर करने में ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखते तो 1 सिग्मा इधर प्लस माइनस करके हम लोग इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और ये बताया था कि ये जो ऊंचाई है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए है, तब जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इधर, इसका जो आप इसको चौड़ाई यदि मान लें तो उसको कहें, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में मेजर करते हैं। मतलब ये जो है इसका यूनिट जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में ही करते हैं। और इसीलिए एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, ये दोनों में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले एस्पेक्ट पे जाएंगे। Statisticians do consider that 95% confidence interval is a more useful statistics than standard error, and it is better to put confidence interval than standard error. मतलब स्टैटिस्टिशियन का एक ग्रुप है जिनका ये मानना है कि स्टैंडर्ड एरर इज नॉट ए गुड स्टैटिस्टिक्स टू वर्क ऑन, because if we work in terms of the confidence interval, it is enough, it is more meaningful, it is more useful for any generalization and any conclusion. ये ग्रुप ऑफ स्टैटिस्टिशियन का मानना है कि हम स्टैंडर्ड एरर को निकाले ही क्यों, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का हम इस्तेमाल कर लें तो हम जो रिजल्ट उससे विड्रॉ करेंगे दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। दो आई एम नॉट एज ए student of statistics not concluding it, I'm just putting information before you, but there are other statistician, rather a group of statistician find the purpose of mean plus minus standard deviation and mean plus minus standard error different. उनका मानना है कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, दोनों का पर्पस अलग अलग है। Standard deviation means the deviation of each sample from mean, and standard error means how confident the researcher is about the mean. मतलब वो कह रहा है कि सारे स्कोर से मीन का जो डेविएशन है उसको मेजर करने वाले स्टैटिस्टिक्स को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, और ये डिफरेंट चीजों को मेजर करता है। और जब हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो इसके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि यदि पॉपुलेशन का जो मीन है उससे सैंपल के मीन के बीच का डेविएशन कितना है। बट दीज कंसेप्ट्स आर बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस, जैसे ये मीन प्लस माइनस एसडी, इसके टर्म तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है। और जैसे जैसे n में डिफरेंस होगा डिफरेंस आते जाएगा, लेकिन यदि n सिंगल n के लिए स्टैंडर्ड एरर का जो डिस्टेंस होगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। सो वी हैव बाय दिस टाइम डिस्कस्ड अबाउट द स्टैंडर्ड एरर, more especially the standard error of mean and other statistics. Now in the second part of the lecture we shall be discussing on the confidence interval and the confidence limit, we can also say. So now we are going to discuss about the confidence interval. So thank you very much.